हेलो। हाय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो कब आ रहे हो? कल आ रहे हो परसों? सर मैं शायद नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा ना, मैंने जो टिकट्स करवाई थी वो कंफर्म नहीं हुई। अच्छा। क्योंकि मैंने तत्काल में भी ट्राई किया, मैंने एक महीने पहले भी टिकट करवाई थी, लेकिन दोनों कंफर्म नहीं हुई। ओहो। बिना हाँ टिकट कंफर्म के इतनी लंबी जर्नी करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ हाँ, 12 घंटा तो दिल्ली से लग जाता है। हाँ। कोई बात नहीं, बाद में ले लेना डिपार्टमेंट से आके, क्या है उसमें। हाँ, वही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो ले सकते हैं ना, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे ख्याल से। ना ना ना, 10-15 दिन के बाद आ जाएगा डिपार्टमेंट में इधर। अच्छा, 10-15 दिन के बाद आ हम्म जाए तो एक एग्जाम देने के लिए आऊँगा तब ले लूँगा। हम्म। और दिल्ली में मौसम कैसा है अभी? ये ठंडा है। मतलब जो एयर पोल्यूशन इंडेक्स है वो तो काफी बढ़ा हुआ रहता है। ये तो वो तो दुखी कर रखा है पोल्यूशन ने तो। हाँ। दिन दिन मतलब भर मतलब सूरज नहीं निकलता है, पूरा धुंध जैसा रहता है माहौल। वो पूरा गला, आंखें सब खराब हो गई है, मतलब गला जल हम्म रहा है, आंखें में हम्म। कंजक्टिविटीज हो गई है, बहुत सारी चीजें हो गई है। ठीक है। तो आज हम देखेंगे माल्डी मास स्पेक्ट्रोमीटर विथ एसोसिएशन विथ लेजर। तो स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। ओके। So matrix assisted laser dispersion ionization technique. This is called MALDI. That is application of laser in the detection of some chemicals or unknown sample. That is called matrix assisted laser dispersion ionization techniques. At it is something add-on to our spectroscopy technique, like mass spectrometer, where mass spectrometer is not complete itself, is the can detect the concentration. Mass spectroscopy can detect only the presence, confirmatory presence of a particular elements or particular molecule, and it can able to identify the structure by the mass fingerprint, which is called fingerprint of any molecules by the consideration of mass, because mass is unit. So this mass spectrometer can be attached along with any IR spectrometer, UV spectrometer, or any AAS or any ICP OES. So similar thing is this laser spectroscopy, laser technique. This is also introduced along with this mass spectroscopy. Before this mass spectroscopy, this laser technique can be used. So in this slides, we are going to study details what are different laser technique that can be used and what are the parts or instrumentation for the MALDI. Let's see. Mass spectroscopy. Before the mass spectroscopy, this MALDI is used, and here matrix assisted laser dispersion or ionization technique is used. What is matrix? We have to know everything, just like that ICP OES, inductively coupled plasma spectroscopy. It itself can be explained what is behind, what is the mechanism. So here there are the inductively coupled mass spectra, so inductive coupled ionization technique is used in this case by replacing the source of light. Here metric assisted laser dispersion technique is used to replace the source of the light, or to ionize, or to charge, or to giving some extra molecular energy that can be excited the molecules or sample molecules from ground state to excited state. So this technique is used, that is called matrix assisted laser dispersion. Matrix means the array of some molecule or some electron of some ion that can be having higher charge than its ground state with application of laser. So this is called matrix assisted laser ionization or dispersion. So soft ionization technique is used here. There are actually two types of laser applications are there. One is called hard laser and one is called soft laser. Soft ionization and hard ionization, this best example of this hard ionization, that is whenever the electron are, or whenever the charge particle are bombarded with a high velocity, with a very high velocity with a substrate, what happened, it having
enough energy to remove the surface molecules or surface ion or surface electron from this particular substrate. Substrate mean where we can just focus the laser beam. So can you say what is the full form of laser? लेजर तो आपने सुना होगा ना, लेजर किसको बोलते हैं, लेजर क्या चीज है एक्चुअली? लेजर सुना तो है मैंने। हाँ, लेजर एक टाइप की एक लाइट बीम जाता है, लेजर होता है ना, बीम लेजर होता लाइट जो है, हम लोग नॉर्मल देखते हैं, लाइट। यूज करते हैं, एक बीम ऑफ हाँ कॉन्सेंट्रेटेड लाइट जो कि डिस्पर्स नहीं होता है, पूरा सीधा सीधा जाता है और इट्स हैविंग वेरी हाई एनर्जी, एनर्जेटिक लाइट है। सो this laser is a highly energized electron particles, वो लेजर होता है। सो लेजर फुल फॉर्म होता है क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द लेजर। कोई भी लाइट है, लाइट इज नथिंग बट द पैकेट्स ऑफ एनर्जी और दैट इज नथिंग बट द फोटन, दिस फोटन और पैकेट्स ऑफ एनर्जी व्हिच आर forcefully energized and particularly directed in a path that is called laser beam, and this laser beam having highly energetic light of packets of light that is called stimulated light. So this laser is used. So hard laser and soft laser, hard laser means having highly energetic particles or it's having enough energy to cause damage to the substrate, that is your hard laser। जैसे कि हम लोग लेजर बीम से कटिंग करते हैं, जो पिक्चर वगैरह में देता है ना कि ये लेजर लाइट आ रहा है ऐसे बहुत सिक्योरिटी होता है, तो उसमें जो भी रास्ते में आएगा उसको कट कर देगा, दैट इज योर हार्ड लेजर। और सॉफ्ट लेजर जो होता है, हम लोग जो बच्चों को खिलौना होता है ना कि लेजर लाइट इसमें वो दूर तक रेड लाइट फोकस करता है, ये होता है सॉफ्ट लेजर, दैट डज नॉट कॉट एनी डैमेज, only it can be shown its path and यूनिक डायरेक्शन, दैट इज ओनली लाइट, उसमें एनर्जी नहीं रहता है, सिर्फ लाइट रहता है, उसको सॉफ्ट लेजर बोलते हैं। और जो हार्ड लेजर होता है उसमें हाईली एनर्जेटिक बीम ऑफ एनर्जी फोटोन होता है, दैट इज कॉल्ड हार्ड लेजर। सो वी कैन डो नॉट यूज द हार्ड लेजर, वी यूज योर सॉफ्ट लेजर, इट इज ऑल्सो हैविंग एनफ एनर्जी टू डिस्प्लेस द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द प्लेट। एक प्लेट है उसमें लेजर लाइट हम लोग फोकस करेंगे, दैट मींस द लेजर लाइट हैविंग एनफ एनर्जी टू डिस्प्लेस द सबस्ट्रेट मेटल्स ऑफ सबस्ट्रेट पार्टिकल्स फ्रॉम द सैंपल। सो ये इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयोनाइजेशन, ओनली आयन ट्रांसफर करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा थोड़ा। देन एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल, लार्ज ऑर्गेनिक मोलिक्यूल, इसमें ये काम आता है, डीएनए आरएनए एनालिसिस, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स है। आयोनाइजेशन इज ट्रिगर बाय लेजर, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज given from the laser only। so किसी भी आयोनाइजेशन हो या किसी भी इंडक्टिवली कपल हो, कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में पहला चीज होता है जो कि सैंपल मॉलिक्यूल्स है उसको एक्साइट करना है थ्रू डिफरेंट मेथड और डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ लाइट हम लोग क्या करें, उसका नाम दे देते हैं। लेट्स सी, मेनली इज आल्सो टू स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट, dispersion triggered by UV laser beam, matrix material heavily absorb UV laser light leading to the absorption of upper layer of matrix material and it can detach from the substrate। जैसे कि मैंने बोला एक सबस्ट्रेट है, पहले क्या होगा, एक लेजर लाइट ऑन करेंगे, लेजर लाइट क्या करेगा, जो मटेरियल है उस मटेरियल में आके आके वहां पे स्पॉट आएगा, दैट मींस द लेजर कैन बी एब्जॉर्ब बाय दिस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द सैंपल, सैंपल जो है हमारा जो सैंपल टेस्ट करेंगे वही है, बस मैट्रिक्स इज ए समथिंग और इट इज ए लाइक ए होल्डर, एक जहां पे सैंपल को होल्ड करेंगे या सैंपल को साथ में उसको रखने के लिए यूज होता है, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। सो वो मैट्रिक्स में यूवी लेजर हम लोग वहां पे बीम रेडिएट करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। सेकेंडली, द एनालाइट मोलिकुलर आयोनाइज्ड विद द हॉट फ्यूम, जो मैट्रिक्स के पास लेजर लाइट आएगा तो क्या होगा, वहां पे हॉट फ्यूम होगा और आयोनाइज कंडीशन एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, एंड दैट एनवायरनमेंट कैन एक्साइट और आयोनाइज द सैंपल मॉलिक्यूल, जो वहां पे जो सैंपल होगा उसको वो आयोनाइज करेगा, एंड दैट सैंपल कैन बी मूव इन द पार्टिकुलर डायरेक्शन। फिर वहां से सब प्रोसेस सेम है, एक चॉपर होगा, चॉपर होता है क्या बोलते हैं, एक स्लिट्स होगा, स्लिट्स के बाद
एक सैंपल होगा, ये रेफरेंस होगा, याद है ना, एक सिंगल बीम होता है, डबल बीम होता है, फिर उसके बाद डिटेक्शन डिटेक्टर में आता है, ये सारे बाद में सेम है। Then what is matrix? Matrix is consisting of crystallized molecule who is they are most the commonly used. That means matrix एक substrate और सैंपल को होल्ड करने के लिए एक तरीका का चिपकने वाला चीज है, that is made up of specific types of chemicals. Which are the chemicals? The chemicals are 3,5 dimethoxy hydroxycinnamic acid. ये हम लोग यूज कर सकते हैं, और आइदर हम लोग यूज कर सकते हैं सियानो फॉर हाइड्रोक्सियानामिक एसिड और 2,5 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये these are type of complex molecules that can be used as a holder of the sample or can be used, this is called as indirectly this is called as matrix, सिनापिनिक एसिड और अल्फा मैट्रिक्स और दैट में DHB। ये तीन तरीका का आपका सबस्ट्रेट हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। सो देयर आर फेयरली लो मोलिकुलर वेट, इसका कैरेक्टराइजेशन है, मतलब क्या है उसका, क्यों उसको यूज करते हैं, बट लार्ज एनफ टू एनफ द वेपर प्रेशर नॉट टू एवापोरेट ड्यूरिंग द सैंपल प्रिपरेशन। ये इसका मेन रीजन वही होता है, उसका लो मोलिकुलर वेट होता है और उसका वेपर प्रेशर हाई रहता है। देन इट इज ऑफन एसिडिक, देयरफॉर एक्ट एज ए प्रोटॉन सोर्स आल्सो। देखो इसमें जो मॉलिक्यूल का नाम था, जो देखो एसिडिक है, सिनामिक एसिड, हाइड्रोसिनामिक एसिड, बेंजोइक एसिड। So these are one kind of acid, and acid containing hydrogen ion excessively. हाइड्रोजन आयन रिलीज करने का उसका पावर रहता है, that's why it can easily donate a proton that can be ionize the sample molecule as positively. So for that it can be used as matrix. So they have also strong optical absorption and UV IR range. और भी इसका एक एडवांटेजेस है, जो मैट्रिक्स हम यूज करते हैं उसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी रहता है ज्यादा, लाइट को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, लेजर इवन लेजर लाइट। सो देयर आर फंक्शनलाइज्ड विद पोलर ग्रुप फॉलोइंग यूज द एक्वस सॉल्यूशन एंड टिपिकली कंटेन ए क्रोमोफोर। पोलर और नॉन पोलर आइडिया है, किसको पोलर बोलते हैं, किसको नॉन पोलर बोलते हैं? पोलर मीन्स which having ability to construct hydrogen bond। जैसे कि H2O वाटर मॉलिक्यूल, H2O हम लोग कैसे करते हैं, HNOH, HNOH एक्स्ट्रा एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन रहता है O के पास, that can be weakly, very weakly bond with a different molecule of H atom। H2O जो H atom के पास, इसका O एक इनविजिबल बॉन्ड के पास एक्सट्रैक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जिसके पास रहता है उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, जो फॉर्म नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारा पॉलीफिन, पैराफिन्स एंड ऑल द ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स दैट आर नॉन पोलर बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर मॉलिक्यूल, अल्कोहल, ये सारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। सो पोलर मॉलिक्यूल्स इसलिए हम लोग यूज करते हैं बिकॉज here those matrix are acidic in nature, and acid contains excessive amount of oxygen and it contains extra lone pair of electron in it, and these are contains a chromophore। chromophore means, chromo means color, phore means ability to detect color। इसका एक और भी एक स्पेशलाइजेशन है, वो कलर भी डिटेक्ट कर सकता है। so the matrix solution is mixed with the analyte, that is sample, and this water and organic solvents allow hydrophobic, that's why it is used as a polar in nature। then solution is potted into multiplate। ये क्या करना है, सिंपली जो मैट्रिक्स सॉल्यूशन है उसके साथ सैंपल को मिला देंगे और उसको एक पेस्ट बना देंगे, जैसे कि मोटार होता है ना पेस्ट, सीमेंट और बालू का। ऐसे सीमेंट मान लो आपका मैट्रिक्स है और बालू मान लो आपका सैंपल है, प्रोटीन हो, डीएनए हो, आरएनए, कुछ भी जो टेस्ट करना होता है, दोनों को एक मिक्स कर देंगे, एक पेस्ट बना देंगे और एक प्लेट में उसको लगा देंगे, एंड दैट प्लेट कैन बी एक्ट एज ए मैट्रिक्स प्लेट विथ हमारा जो है सैंपल, एंड दिस लेजर बीम कैन बी स्पॉटेड इन द प्लेट, और दिस प्लेट को बोलते हैं मल्टीप्लेट। मल्टीप्लेट इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ सैंपल एंड दिस मैट्रिक्स, एंड द सॉल्वेंट इज वेपोराइज्ड लीविंग ओनली द क्रिस्टलाइन मैट्रिक्स एंड द मेल्टिंग क्रिस्टल। जब लेजर जैसे भी हम लोग वहां पे इंसर्ट करेंगे, वो जैसे सॉल्वेंट होगा, वाटर
क्योंकि बाइंड करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, जो मैट्रिक्स और जो सैंपल को बाइंड करने के लिए। कभी कभी हम लोग वो कुछ अल्कोहल यूज कर सकते हैं, कभी कभी वाटर भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही लेजर बीम आएगा तो वाटर मॉलिक्यूल एवापोरेट हो जाएगा, और जो मैट्रिक्स और सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा दैट कैन बी sticked on the Medley plate. The matrix and analytes are also to be crystallized. वो चिपक जाएगा वहां पे. So this can be selecting the proper matrix. Then ये हो गया आपका Medley plate preparation हो गया. Second आ गया laser. Medley techniques is typically used by using a UV laser, and the laser that can be must be UV range, and here nitrogen laser of 337 nanometer is used. And this why is the GaN laser that is also ranging from 355 nanometer to 265 nanometer? Because here see all these lasers are in UV range, because UV light having higher energy than the visible spectra. That's why we are using UV laser, and the UV laser is less than 400 nanometer, always less than 400 nanometer, either 355 or 266 or 337, whatever may be, that is less than 400 nanometer. And this having higher energy, contains higher energy beam, so that having sufficient amount of energy to ionize this sample. Although not as common, infrared laser are used due to their softer mode of ionization. किसी किसी में IR laser भी यूज होता है, बट विजिबल नहीं होता है यूज. IR multi also has been advantage the greater material removal for the biological sample. कभी कभी UV यूज करते हैं, कभी कभी IR यूज करते हैं, डिपेंडिंग on what we are going to analyze. So these are the sample preparation. किसके लिए कौन कौन सा यूज होता है? 2,5-dihydroxybenzoic acid are used when we are going to apply or analyze the peptides, protein, lipids, oligosaccharides, जितना भी प्लांट्स रिलेटेड से या प्रोटीन वगैरह है उसके लिए हमको DHB यूज करते हैं. पेप्टाइड्स प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन के लिए ये भी यूज करते हैं. मतलब अपने हिसाब से कौन सा आपको यूज सही लगेगा उसी हिसाब से यू कैन चूज एनी वन ऑफ दिम थ्री as a matrix for our application. Then mechanism, how this multi instrument can be operated. So this is mainly operates using the three steps. First is formation of a solid solution, then matrix excitation, then analyte ionization. Solid solution, that is essential for the matrix to be assessed by leading the analyte molecule being completely isolated, because solid, we are solution and solid solution, there is a difference. Solution मतलब क्या होता है? There must be a solvent, solvent रहेगा और उसमें solute ऐड होगा, that is called solvent solution. Solid solution मीन solvent तो डालेंगे लेकिन उसमें क्या होगा, जो वाटर वेपर वो अपने आप निकल जाएगा और उसके साथ क्या रहेगा, वो मैट्रिक्स के साथ चिपक जाएगा. So that is called solid solution. That means only solute particles are intact with the matrix material after some time, and it also formation of a homogeneous solid solution. ये homogeneous भी होना चाहिए. Then matrix excitation. अभी ये solid solution जो है matrix plate में चिपक गया, then उसको excitation करना है. क्या ऐसे करेंगे? The laser beam is focused on the matrix plate. जो प्लेट में हम लोग तो चिपकाए थे उसमें लेजर बीम फोकस करेंगे. And the chromophore of the matrix, that laser frequency are vibrational, and this can be detached from the solid solution. उसके बाद solid solution में क्या क्या है? एक तो मैट्रिक्स मॉलिक्यूल है, दूसरा हमारा है उसमें जो सैंपल मॉलिक्यूल, जो प्रोटीन हो, RNA हो, DNA हो, कुछ भी हो. तो उसी टाइम में जब हम लोग लेजर बीम इंसर्ट करेंगे, व्हाट हैपन, द chromophore nature or the particular absorption of light nature of the matrix that can absorb the particular light and energy, and this solid solution can be localized by this vaporization takes place. वहां पे क्या होगा, जो सैंपल मॉलिक्यूल्स है वो वेपर होना स्टार्ट हो जाएगा और आयोनाइज हो जाना स्टार्ट हो जाएगा साथ साथ में. So and this cluster rejected from the surface and molecule, and along with that the vaporized ionized particles are leaked to the plates. वो प्लेट को छोड़ना लगेगा आयोनाइज जब हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगी तो एक्साइटेड होने के बाद, and the energy gained by these sample molecules are ionized and vaporized, and that can be travel along with these slits. फिर वो जाके डिटेक्टर में आएगा, कितना अमाउंट में वो एक्साइट होगा उसके हिसाब से हम लोग टेस्ट करेंगे आगे. Then analyte isolation.
Photoexcited matrix are stabilized through photon transfer. Then cation attachment analyte also during the process, and it is also characteristics of matrix plus solvent, that is H and etc. Analytes and is formed. एनालाइट आयोनाइजेशन मतलब जैसे कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने को वाला है वो सैंपल, एंड दैट सैंपल कैन बी वेपोराइज्ड, and now it is called as analyte. Ionize the ionization sample, that is called analyte or sample. Here matrix is X, the X is the sample of that may be any N A K और जो भी टेस्ट करना होता है सारे उसमें आ जाएंगे. So this ionization reaction takes place and the absorbed analyte just above the surface and it can be moved to the mass spectroscopy. ये हमारा हो गया. अभी जो सैंपल एक्साइट होने के बाद जो एनालाइट आ जाएगा, आयोनाइज एनालाइट आ जाएगा, वो क्या करेंगे हम लोग आगे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी रख देंगे और उसमें वो डायरेक्ट इनपुट आएगा, इनपुट फॉर द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के आगे लगा देंगे. तो अगेन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी वर्किंग इटसेल्फ. फिर उसमें क्या होगा, फ्रैगमेंटेशन होगा एंड इट कैन डिटेक्ट द यूनिक स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी. फिर उसमें जाएगा. दिस इज द मैकेनिज्म. सी, this is the plate, multi plate, which contained the matrix as well as sample. Matrix sample दोनों रहेगा. Then we are focusing the laser here. Laser, the laser beam. Laser beam, after getting fall in the laser beam, the matrix or multi plates, what's happen? These can ionize and that can also vaporize. And these vaporize, there are two types of molecule: analyte ion, that is called sample, and the matrix ion. Matrix ion are not required. We are having working with the analyte ion. When the analyte ion moves to the mass spectroscopy, यहाँ पे फिर mass spectroscopy लगा हुआ है, फिर यहाँ पे वो fragmentation होगा और जैसे ये काम करेगा ऐसे ही होगा. So this is the main principle of multi, that is metric associated laser and dissociation or ionization. So this process, the mass spectroscopy is again attached to the right to that. We already discussed what is mass spectroscopy. So simple target for MELD to the mass spectroscopy is also required. Then the mass spectrometer we widely used is MELD. हम लोग मास स्पेक्ट्रोमीटर जाके यूवी आईआर कुछ भी लगा सकते हैं, आईसीपी ओएस भी लगा सकते हैं, बस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन एक्यूरेटली measure. And the more advantage of mass spectroscopy is it can detect very small minute amount of the sample from the source. And this is also called time of flight mass spectrometer. This mass spectrometer is called TOF. That means the output of this spectrum, this analyte ion which are moving, these are real in time. That means if we cannot store it, we cannot store in a vacuum or cannot store in a vessel, or again after some time we can take to the mass spectroscopy and retest it, because it loses its energy and it loses its property. So immediate after this multi instrument, the running mass spectrometers is very much essential to analyze this. So that's why it is called time of flight mass spectrometer, मतलब real time mass spectrometer. And the time of flight mass spectrometer also usually suited for multi applications, and that is called multi TOF. The total instrument is called multi TOF, that is time of flight. So today commercial reflection time of flight instrument are resolving the power of n by m, and that is full width half maximum. That is actually whenever the mass spectrometer peaks are we are analyzed, that mass spectrometer peak are like that, like that. So the peak height, that peak height and peak distance, that are the unique properties of every element. So if the sample is very less and the energy is moving from whenever one instrument passing the light of the sample from one instrument to another instrument, the they can lose electron, sorry, they can lose the energy, and the peak that can also be reduced. So 50% peak height also can be seen reduced. That's why we are taking m by delta m. Here mass spectroscopy, that is m by mass by charge is the taken. Here mass by del m is taken. Del m means change in mass. Mass is actual mass and del m is change in mass, which can be reduced the 50% of peak height. So that can also be find out if the height, even if the peak height is reduced 50%. So multi IRS MS also demonstrate this is not required.
Then productivity and performance. This sample preparation of the MALDI is important for sensitivity, reproducibility, and quantification. If the MALDI plate or the matrix with sample that can be prepared very good, then we have find out the best result. If the sample is not prepared correctly, the MALDI instrument cannot give the correct analysis. So the sample preparation stage is very much crucial for the MALDI application. Inorganic salt are also part of the protein extract, so there is ionization process. Along with the protein analysis, the salts are also intact with this MALDI application because the salts are the byproducts that cannot be neglected. The salts can be removed by solid phase extraction by washing the direct droplet. So in order to remove the error of the salt, we can wash the solid plate or the MALDI with this cold water because water can be wash out the unnecessary ions or unnecessary extra noise effect of this our result. So in order to remove this extra salt part, we can wash the MALDI plate with cold water. Both the methods also remove the substance from the sample. So without washing and washing, they can be also using this remove the salt. So where MALDI can be used to characterize and identify large molecule. If the molecule is very large, like DNA, RNA, protein, these are very large and complex molecule. To identify this MALDI is used because MALDI is very much high price and having more accuracy than other instrument. So it is very sophisticated. A sample preparation is very crucial. So it is used very widely. But used of pharmaceutical compound, then monitoring of enzyme reactions, how enzyme reactions can be takes place. This can be used. DNA sequencing and forensic technique also used to identify different straight chain viruses, develop vaccines. This MALDI because it is very much sophisticated instrument and very costly instrument. So this is another record. Okay, this is all about MALDI, and this MALDI is used for development, mainly used particularly in pharmaceuticals and in biological applications. But our environmental application we are limited to UV visible, IR, and AAS. ICP is also not used repeatedly in normal laboratories. But whenever you want to use or detect particular large quantity of even heavy metals, all the things in a shorter period of time, then ICP can be also used. And for biological and pharmaceutical applications or forensic applications, the mass spectroscopy and MALDI is used. कुछ डाउट है इसमें? नहीं सर, अभी तो नहीं, पढ़ना पड़ेगा, फिर देखते हैं। ठीक है, मतलब टिपिकल है ये सब्जेक्ट मेरे लिए। हाँ थोड़ा मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी है सभी, मतलब सबका प्रिंसिपल एक ही है, लेकिन सबकी अलग अलग वही है वर्किंग है, सबका अलग अलग मीडियम्स है, सब चीजें अलग अलग है। सो आगे मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आपने माइक्रोस्कोप तो देखा होगा। माइक्रोस्कोप कितने टाइप का रहते हैं पता है? पता नहीं, लेकिन बहुत सारे टाइप के रहते हैं, क्योंकि कुछ नैनो से लेके कुछ मैक्रो तक मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉर्मली जो हमारा लैब में रहता है दैट इज कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देखा होगा जो या पैथोलॉजी लैब में जो टेस्ट करते हैं, ऐसे नीचे घुमाते हैं ना लाइट देके, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और आल्सो इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। हियर लाइट इज यूज्ड टू सी द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ पे हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम लोग माइक्रोस्कोप में वी कैन सी और मैग्नीफाइंग इमेज ऑफ ए पार्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ ए सब्सटेंस हम लोग देख सकते हैं। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में क्या हो सकता है, वेयर वी आर मैग्नीफाइंग द इमेज अप टू 10x, 20x, 30x, 50x, 100x, up to 100x, we can 150x also we can magnifying the image of this any substance, that is by the application of light
that is why it is called as compound microscope or optical microscope. But in electron microscope what happen, in place of light we are using electron. यहाँ पे प्रोसेस सेम है, बट जो फोटोन यूज होता था, जो लाइट यूज होता था, उसको हम लोग क्या रिप्लेस कर दिए, इलेक्ट्रॉन में. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. So electron microscope are the scientific instruments that are used a beam of magnetic electron to examine the object in fine scale. हम लोग इलेक्ट्रॉन के द्वारा हम लोग उसको एनालाइज करते हैं. एंड दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप में ज्यादा जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तक हम लोग नहीं देख पाएंगे, और वेरी लार्ज जैसे मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होता है उतना पूरा डिटेल से नहीं देख पाएंगे, तो उसका जो लिमिटेशन की वजह से ये आगे डेवलप हुआ. एंड 1930 में इसका लिमिट आया. उसके बाद ही ये ज्यादा हम लोग देखने के लिए क्या देखना है, जो ऑर्गेनिक सेल है, न्यूक्लियस है और भीतर अंदर क्या है, सब देखने के लिए. एंड दिस रिक्वायर्ड 10,000x प्लस मैग्निफिकेशन. जैसे कि हम लोग बोला कि और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उसको मैक्सिमम 100x या ज्यादा से 150x तक देख सकते हैं. यहाँ पे देखिए इसका मैग्नीफाइंग रेंज 10,000x, इतना भी हम लोग देख सकते हैं. फॉर इमेजिंग ऑफ नानो स्केल ऑब्जेक्ट्स ये काम आता है. नानो स्केल मीन 10⁻⁹, इतना छोटा अमाउंट हम देख सकते हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ फोटॉन. करेक्ट. इलेक्ट्रॉन हैव ए मच शॉर्टर वेवलेंथ देन प्रोटॉन. ए फोटॉन होता है लाइट, इलेक्ट्रॉन उसके भी और शॉर्टर वेवलेंथ आता है. देन ऑब्जर्व मैटर विद एटॉमिक रिजोल्यूशन. वो एटॉम तक हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड बोथ आर इन योर कोर्स. स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दैट इज कॉल्ड SEM, एंड सेकंड इज कॉल्ड ट्रांसमिटर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दैट इज कॉल्ड TEM. ये दोनों के बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे. See this is see optical microscopes. लेफ्ट साइड में जो है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, राइट साइड में जो है दैट इज ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, और ये आपका कंपाउंड सॉरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सोफिस्टिकेटेड है, ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप सस्ते में आ जाता है. तो इसका फोटो दिया हुआ है कैसे इसका देखा जाता है. देन मैग्नीफाइंग अचीवेबल बाय द डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स. देखिए ये कैसे एक एग्जांपल्स है. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में इतना देख सकते हैं मैग्नीफाइंग करके मैक्सिमम. उसके बाद और अंदर जाना है तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जाना है. उससे और एडवांस जाना है तो ट्रांसमिटर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ले जाना है. मतलब SEM से और ज्यादा बेहतर है TEM. सो वेरीफाइंग वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक अचीव बाय द ऑप्टिकल स्कैनिंग माइक्रोस्कोप, ये अपने मतलब किससे ज्यादा इंक्रीज होता है. सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हियर the electron beam which is focused into a small probe and the surface of a specimen. मेन फंडा क्या है, इलेक्ट्रॉन हम लोग जनरेट करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन को एक फोकस बीम के हिसाब से या हम लोग जो सबस्ट्रेट है सैंपल में आप उसको गॉन में ट्रिगर करेंगे. दैट इज द मेन theory behind the electron microscope. And the first electron microscope was developed by Hans Busch, that is in 1926. That is inventor of this electron microscope. See, this is electron microscope diagram basically, where in place of light we are using electron. So सेम थिंग है जैसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जैसा है. तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गॉन होगा, इलेक्ट्रॉन गॉन में इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, ये आपका मैग्नेटिक कॉइल होगा, इसलिए वो मैग्नेटाइज भी हो जाएगा. हियर वी आर यूजिंग मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन बीम, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन बीम, मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन बीम, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मैग्नेटाइज एंड देन पास इन ए और फोल्ड इन ए स्पेसिमेन. एक पतला सा प्लेट होगा, वहां पे हमारा सैंपल रखते हैं. देन यहाँ पे सैंपल के थ्रू हम पास करेंगे एंड हियर वी कैन सी द इमेजिंग. ये कैमरा है लास्ट में, ये कैमरा में उसका फोटो आ जाएगा, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं उसका इमेज. सो दिस इज द एग्जांपल. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या क्या देखते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं. हेवी मेटल्स सच एज लीड्स, आर्सेनिक, ये सब भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं. बिकॉज दिस कैन बी हैविंग यूनिक इमेजेस और यूनिक मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स आर देयर. सो ये मोलिकुलर स्ट्रक्चर हमका पैटर्न देख लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला यहाँ पे यूज हुआ है. द स्टेन्स आर रिमूवेबल बाय द सेल्स. दैट मीन्स पार्टिकुलर स्टेन्स आर यूज. जैसे कि हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट आपने देखा है, पैथोलॉजी वाले ब्लड टेस्ट कैसे करते हैं,
ब्लड सैंपल लेते हैं, उस सैंपल में क्या रखते हैं, एक इंडिकेटर देते हैं या कोई उसको बोलते हैं स्टेन, जो कि दैट कैन बी हेल्प टू सी द क्लियर इमेजेस अकॉर्डिंग टू इस प्रॉपर्टी। जैसे कि ब्लड है तो ग्रीन कलर का स्टेन देना है, मान लो कोई दूसरा है तो रेड कलर का कोई इंडिकेटर देना है। सिमिलरली व्हेनेवर अकॉर्डिंग टू आवर यूज वी आर यूजिंग डिफरेंट स्टेन और टू डिटेक्ट और टू विजिबल क्लियरली विजिबल टू द इमेजेस। तो किसी किसी में वाटर में दे सकते हैं, इस टाइप का देना होता है। फॉर दैट वी आर प्रिपेयर ए वेरी थिन लेयर ऑफ सैंपल। जैसे कि यहाँ पे देखा होगा आपने, यहाँ पे ये जो ब्लैक थिंग है, दिस इज द सैंपल प्लेट, एंड सैंपल प्लेट के ऊपर वेरी थिन लेयर ऑफ सैंपल रखा हुआ है। तो वेरी स्लाइस करना पड़ेगा हमको, जो सैंपल है वो स्लाइस करने के बाद वो सैंपल को हम लोग वहां पे रखना है और उसमें इलेक्ट्रॉन बीम, जो मैग्नेटाइक इलेक्ट्रॉन बीम पास करना है। तो दैट्स व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग वेरी थिन स्लाइस। और जो सैंपल प्रिपेरेशन इज आल्सो वेरी मच क्रूशियल फॉर दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सैंपल अच्छे से प्रिपेयर नहीं होगा तो यहाँ पे भी हमको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग स्टेन। क्योंकि क्या होता है, कुछ कुछ सैंपल अपने आप प्लेट नहीं बनता है, व्हेन यू आर यूजिंग स्टेन उसमें कुछ मतलब गम जैसा चीज डालना पड़ता है, रेजिन डालना पड़ता है। तो उसमें क्या होगा, एक पतला सा लेयर फॉर्म हो जाएगा, एंड दैट लेयर कैन बी इजीली प्लेस्ड इन दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। Electron microscopes are used in scientific laboratory, very much used in the forensic laboratory, nanotechnology, mining activity। और देखिए यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर दिया गया है। फर्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड फोरेंसिक्स। फोरेंसिक में हम लोग क्या यूज करेंगे, फिंगरप्रिंट देखने के लिए यूज कर सकते हैं। हमारा जो हेयर सैंपल या कोई भी बायोलॉजिकल सैंपल देखना है उसका स्ट्रक्चर तो यूज कर सकते हैं। देन नानो टेक्नोलॉजी में नानो टाइम 10⁻⁹ उसके बाद उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। माइनिंग में एवरी एलिमेंट्स, एवरी मेटल्स दैट आर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, that is called atomic structure as well as the crystalline structure that also can be viewed by this electron microscope। तो हम लोग जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक और माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, देयर आर टू डिफरेंट टेक्निक्स। स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स में हम लोग क्या करते हैं, लाइट या कोई भी इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव देते हैं, उसके ऊपर एनर्जाइज करेंगे और एमिशन और एब्जॉर्प्शन को देखेंगे, आइदर मास देखेंगे। That is the properties। So in our electron microscopy we are using the photo or within the structure of this and quantify or this what is the sample by seeing the structure। एडवांटेजेस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या एडवांटेजेस है, सॉरी डिसएडवांटेजेस है। उससे पहले एडवांटेज जान लेते हैं। एडवांटेज में क्या है, वी कैन सी अप टू 10⁻⁹ to the -9 nanometer range, and that can be very much crucial to analyze different kind of sample। What are the disadvantages of microscope, electron microscope? The instrument is very large, it is very expensive and not everyone handle। आप उसके स्पेशल ट्रेनिंग लेंगे तभी आप हैंडल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। सैंपल प्रिपरेशन इज वेरी मच क्रूशियल। सैंपल प्रिपरेशन में गलत हुआ तो आप बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो स्पेसिफिक सैंपल प्रिपरेशन इज रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ टाइम एज वेल एज वेरी मच स्किल, गुड स्किल टू प्रिपेयर सैंपल एंड हैंडल द इंस्ट्रूमेंट। लाखों करोड़ों का इंस्ट्रूमेंट है, थोड़ा सा गलती होने से खराब हो जाएगा। एंड स्पेसिमेंस आर माउंटेड ऑन द प्लास्टिक हैंड व्हिच मींस देयर डेड सेल्स कैन बी व्यूज। बहुत कुछ भी यहाँ पे मतलब कंटामिनेट भी हो सकता है। इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसमें क्या इंस्ट्रूमेंटेशन रहता है। सोर्स, व्हाट इज द सोर्स हियर, इलेक्ट्रॉन गन, जो इलेक्ट्रॉन हम लोग बॉम्बार्डेड करेंगे दैट इज द सोर्स। देन कंसीडर लेंस, that means the electron gone is nothing but a like a beam of light। जैसे beam of photon रहता है, ये beam of electron रहता है और कुछ नहीं है। तो उसको फोकस करने के लिए लेंस यूज करेंगे। देन कंसीडर लेंस, देन ऑब्जेक्टिव लेंस। पहले एक लेंस यूज होगा, बाद में एक लेंस यूज होगा। पहले लेंस होगा तो कंडेंसर लेंस बोलेंगे और बाद में जो होगा उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। देन प्रोजेक्टर लेंस, उसको मैग्नीफाइंग करने के लिए स्पेशली टेम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज होता है, नहीं तो इसमें यूज नहीं होता है सेम में। देन suitability prepare the specimen, मेटालिक कोटिंग उसमें में लगता है और थीन सेक्शन कटिंग टेम में लगता है, ये आएंगे धीरे धीरे। सी दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसका कैसे आप यूज होता है। लाइट माइक्रोस्कोप, सॉरी दिस इज ऑल डिटेल्स अबाउट स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसे कि हम लोग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, सैम एंड टेम। तो पहले सैम और टेम आते हैं।
the mode of action of SEM is similar to the compound microscope. However, electron beam are behave like say wave where focus using the magnetic field and use ordinary lenses. यहाँ पे SEM is very much similar to ordinary microscope. Only the light source is replaced by the electrons. ये डिफरेंस देखो, ये जो सोर्स ऑफ लाइट यूज होता है यहाँ पे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होगा, यही डिफरेंस है। पहले जो लेंस यूज होगा उसको बोलेंगे कंडेंसर, स्पेसिमेन के बाद दो लेंस यूज होगा तो में ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये दो लेंस यूज होता है, कंडेंसर लेंस और ये ऑब्जेक्टिव लेंस। ये होता है यूज होता है माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप में, बिकॉज वी हैव टू फोकस द लाइट इन द स्पेसिमेन। देन बाद में जो आएगा उसमें हम लोग इसमें कैमरा लगा सकते हैं, खुद आया में भी देख सकते हैं, जो भी करना है, दैट इज आवर डिटेक्टर आल्सो, एंड दैट इज लाइट माइक्रोस्कोप। हियर सोर्स, ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है कंडेंसर की जगह पे क्यों क्या हुआ इसमें, दैट इज कॉल्ड एज स्लिट्स और चॉपर। इसको क्या कहते हैं, बीच बीच में से काटते हैं तो चॉपर बोलते हैं। देन कंडेंसर इज यूज्ड एज ए मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट इज a heavily electromagnet is used as a condenser, and that can be passed through the objective plate or the specimen is the क्या बोलते हैं इसको, slits according to the need of our electron beam. The size of the slits can be varies, and then another magnetic plate is used that is called objective, then that can be fall in the specimen, and then that can be detected our detector, or that can be recorded in our camera. So this is the simple principle of SEM. A scanning electron microscope is a type of electron microscope that images a simple by scanning with high frequency of energy of electrons in a raster scan pattern. An electron interact with the atom that makes up the sample producing the signal. यहाँ पे और एक चीज है, normally what happened, electron microscope, the electron beam are not directly falling the sample. What happened, the sample electron microscope, the electron beam is just swipes away here and there, पूरा सैंपल में कवर करेगा और ऐसे लाइट को स्कैन करेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्कैनिंग माइक्रोस्कोप। दैट इज इलेक्ट्रॉन बीम इज स्कैन विद द वेरी दिस सैंपल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एंड जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन स्कैन करेगा, वी आर जस्ट record the pattern of scanning, कहाँ पे हाइट है, कहाँ पे टॉप है, that is called topography of the composition of the that specimen, that can be recorded by the scanning pattern. Scanning pattern में कहाँ पे क्या है उसे हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, that is called principle of scanning electron microscope. ये डिटेल्स दिया गया है, here energy gone, electron gone, then this is slits again, then it is magnetic plate, it's called condenser, then another magnetic plate that is called objective, then this is the holder, specimen holder, electron beam is placed, then this right is can be fall into detector, and this detector can be further amplified, and after amplified we can be keep the record or can be capture the photo. Here this is simple fundamental diagram. You have to remember this, the sequence of this different instrument. See, this is again metallic, how sample is prepared. जैसे कि हम लोग स्टैंडिंग में देखते थे, मेटालिक कोटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर बायोलॉजिकल सैंपल। बायोलॉजिकल सैंपल क्या होता है, जैसे कि कोई टेस्ट करना है, डीएनए आरएनए टेस्ट करना है, उसका फोटो देखना है, सेल का फोटो देखना है, तो क्या करना है, वो उसमें एक स्टैंड देते हैं दैट कैन बी रिक्वायर्ड फॉर टू स्टेबल द स्पेसिमेन इनटू द होल्डर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज अप टू 100,000 x मैग्निफिकेशन एंड मोर देन 10,000 x रिजोल्यूशन फॉर लाइट माइक्रोस्कोप। ये उससे बहुत एडवांटेजेस है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से। So these are the different photo example. Then component of the SEM, already we are already discussed what are the component. पहले लेंस आएगा, then इलेक्ट्रॉन गॉन आएगा, फिर कंडेंसर लेंस आएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस आएगा, इलेक्ट्रॉन बीम आएगा, ये सारे ट्रांसडक्टर में डिटेक्टर्स है। ये कितने बार डिस्कस करेंगे, वही है कंडेंसर, ऑब्जेक्टिव एंड इलेक्ट्रॉन गॉन। पहले इलेक्ट्रॉन गॉन आएगा, कंडेंसर, देन objective, then aperture और जेटिकल slits, नेटिकल sample holder and detector. Simple thing है, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। See, this is one example. This is a photo of some molecules arranged of in elements
मॉलिक्यूल्स में एटम्स कैसे अरेंज होता है, इसका एक सैंपल है ये दिस इज द रेंज ऑफ 500 नैनोमीटर। ये 500 नैनोमीटर में इसका इमेज लिया गया है। सी दिस इज another example where you can see clear images of some flies। उसका सिर का हीट कैसे दिख रहा है, देखिए how much clear you can see this is the different images, specimen images how we can see by the same। जैसे सेल के अंदर जो रहता है ना न्यूक्लियस वगैरह वो बाकी पार्ट्स ऐसे दिखता है। दिस इज ऑल्सो सम फ्लाइज। देन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे माइक्रो एनालिसिस। ये जो दीज आर एक्स्ट्रा एड ऑन टू द सेम। सेम में क्या होता है, हम लोग को इमेजेस मिल गया बट वी कैन कन्वर्ट द इमेजेस टू एक्सरे माइक्रो एनालिसिस। उसको और एनालिसिस करने के लिए और एक पार्ट यूज होता है दैट इज एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे माइक्रो एनालिसिस ईडेक्स। एंड दिस increasing electrons interact with sample। After that, it can be increases the portion of the electron interaction and generate from the sample and measurable electron energy analyze the spectrum। सेम क्या होता है, उसमें सिर्फ हम फोटो देख सकते हैं बट आफ्टर गेटिंग द इमेजेस द इलेक्ट्रॉन गॉन में जो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा था उसमें कुछ एनर्जाइज था। आफ्टर सैंपल पढ़ने के बाद वो जो एनर्जी बीम का क्या हुआ, एनर्जी का रिड्यूस हुआ, उसका इंक्रीज हुआ, कैसे हुआ, दैट कैन बी ऑल्सो एनालाइज्ड बाय दिस इंडेक्स दैट इज एनर्जी डिस्पर्सिव एक्रे एनालिसिस। ये बस वो जो एनर्जी बीम आ रहा था द इलेक्ट्रॉन बीम उसको एनालिसिस करके हम लोग और एक ग्राफ निकाल सकते हैं दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। ये देखिए ये जो बड़ा वाला है दिस इज सेम, ये सेम का इमेजेस है और ये जो है ये इंडेक्स का इमेज ग्राफ है। इसका मतलब इसका जो एनर्जी बीम है उसको हम लोग एनालिसिस करके ग्राफ निकाला हुआ है दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। तो इंडेक्स में क्या होता है, एक पार्टिकुलर पीक जो आता है दैट इज यूनिक फॉर ए पार्टिकुलर एलिमेंट। यहाँ पे जो पीक आएगा ये एल्यूमिनियम का पीक है, यहाँ पे जो पीक आएगा सिलिकॉन का पीक है। सो फ्रॉम इनडायरेक्टली वी कैन सी बोथ इमेजेस एंड द एलिमेंटल कंपोजिशंस। देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम भी है, सिलिकॉन भी है एंड टिटेनियम भी है, तीनों है। तो उसमें सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम कंटेंट है। तो हमको ये पता चल गया कि दिस मटेरियल इज कंसिस्टिंग ऑफ सिलिके एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन एज वेल एज टिटेनियम। सम यहाँ पे थोड़ा सा फेरस भी है, बस ज्यादा मेजॉरिटी एल्यूमिनियम है। ये हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं दिस इज इंडेक्स एनालिसिस। दिस इज सेकेंडरी थिंग, ये जो है सेम का सेकेंडरी एनालिसिस चीज है ये इंडेक्स। देन रेंज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेम। एप्लीकेशन का क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, कहां तक यूज कर सकते हैं, वो भी सब जगह यूज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए और आगे जाएंगे। तो ये कहां पे फेलियर होता है, फेलियर एंड डिटेक्ट एनालिसिस। कभी कभी क्या होता है सही सैंपल नहीं बनेगा तो फेलियर भी हो सकता है, एनालिसिस ठीक से डिटेक्ट नहीं हो सकता है। एग्जामिनेशन ऑफ सरफेस मॉर्फोलॉजी इंक्लूडिंग स्टेरियो इमेजिंग। सरफेस मॉर्फोलॉजी जो है इसमें वो यूज हो सकता है बट इन जो सरफेस मॉर्फोलॉजी ऊपर का जो इमेजेस देख सकता है बट वी कैन नॉट इंटरेक्ट द इनर साइड ऑफ दिस स्ट्रक्चर। एटम का ऊपर से बाहर से हम देख सकते हैं तो अंदर में क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो हम लोग नहीं देख सकते। एनालिसिस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरफेस एंड एयरबोर्न कंटामिनेशन, इसमें वो यूज हो सकता है। पाउडर मॉर्फोलॉजी, पार्टिकल साइज एनालिसिस, इसमें भी यूज हो सकता है, कितना क्रिस्टलाइन है, कितना पार्टिकल साइज है। मान लीजिए हम लोग फोटो देखेंगे ज्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, पैटर्न बहुत है, तो हम बोल सकते हैं ये क्रिस्टलाइन है। पूरा पाउडर फॉर्म है तो हम लोग उसका पैटर्न अलग होगा तो उसको बोल सकते हैं पाउडर फॉर्म है। क्लीनिंग प्रॉब्लम, केमिकल इचिंग, वो साफ करने में एक सैंपल लगाया, टेस्ट करने के लिए दूसरा सैंपल लगाने के टाइम पे वेरी मच वी हैव टू हैंडल द इंस्ट्रूमेंट वेरी केयरफुली। क्लीनिंग करना बहुत प्रॉब्लम होता है, ये उसका डिसएडवांटेजेस है। वेल्डिंग एंड जॉइंटिंग टेक्नोलॉजी, बहुत सारे चीजें हैं जो कि हम लोग एनालिसिस नहीं कर सकते हैं ये सारी चीजें। पेंट एंड कोटिंग फेल्यूर्स, कभी कभी ये भी हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ कोरोजन एंड ऑक्सीडाइज प्रॉब्लम, ये कोरोड भी हो सकता है, कभी कभी ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड हो सकता है, तो इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस है सेम में। See, now see these are the some images of SAM। हम लोग एक्चुअली SAM images are not colorful, ये colorful पहले नहीं है but here we can develop SAM images by the Photoshop। हम लोग जो SAM images आता है ये SAM images ऐसा रहता है ब्लैक एंड व्हाइट, तो हम लोग इसको क्या करते हैं फोटोशॉप करके उसको एनहांस करते हैं एंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर आवर डिफरेंट पर्पजेस।
ये एक इपोक्सी, कोई इपोक्सी है उसका फोटो है ये देखिए, ये फोटो से किया हुआ है। दिस इज अ फ्लावर इमेज ऑफ फ्लावर स्टिग्मा, फ्लावर में जो पोलन ग्रैंड स्टिग्मा रहता है उसका है ये फोटो। ये ब्लैक एंड व्हाइट रहता है, लेकिन हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए फोटोशॉप किया हुआ है, बस कलर लगा दिया हमने। ये देखिए, सेल फ्रॉम द विंटर वेविंग, ये हमारा जो स्वेटर होता है ना गर्मी के कपड़े, उसका सेल है, ये सब दिखता है। सो इट इज वेरी मच अंडरस्टैंड टू सी द इमेजेस, इमेज को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये कहने का मतलब कोई भी स्ट्रक्चरल इमेजेस है, बाय एक्सप्लेनिंग, हम लोग एक्सप्लेनिंग पर्पज में हम लोग ये कलर भी हम लोग कर सकते हैं। दिस इज द ब्लड, दिस इज द इमेजेस ऑफ ब्लड। ब्लड में क्या क्या रहता है, आरबीसी रहता है, डब्ल्यूबीसी रहता है, प्लेटलेट्स रहता है, बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं। तो ये सबका अलग अलग कर दिया तो इतना अच्छा दिख रहा है। Then we can also describe it by our viewing the same images. See, same image of fly's eye, मक्खी का आंख कैसा दिख रहा है, उसको हम लोग कलरफुल कर दिया तो बहुत अच्छा दिख रहा है, नहीं तो ये ब्लैक एंड व्हाइट ही रहता है। सी, दिस इज द कॉमन प्लांट्स इंक्लूडिंग सनफ्लावर फ्रॉम इज पोलन ग्रेन, इसका पोलन ग्रेन कैसा दिखे, इसका इसका ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, पहले से देखा था आपने, एक कहीं पे तो था ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, उसको कलर किया हुआ है। हाँ, ये वाला देखिए, दिस इज एक्चुअली रियल सेम इमेजेस बट वी कैन कलरफुल टू एक्सप्लेन द नेचर। अलग अलग का अलग अलग कलर कर दिया तो हम लोग कैन क्लियरली एक्सप्लेन इट। सी, दिस इज द बटरफ्लाई विंग्स, ऐसा दिखता है। दिस इज ऑल्सो सम सिलिएटेड थिंग्स, हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत सारी चीजें। ए प्लांट लीफ, उसका क्रॉस सेक्शन प्लांट लीफ का ऐसा दिखता है, उसमें जाइलम फ्लूएम जो भी है वेसल्स सारे दिखे रहा है इसमें। ब्लू चीज, ये भी ऐसा दिखता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेम सेम। So next class we will discuss about TEM, that is transmission electron microscope। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टेम में उसका और एडवांटेजेस क्या है। देन वी शुड कंपेयर थ्री थिंग्स, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ट्रांसमिटर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तीनों चीजों का कंपेयर कर सकते हैं हम। ओके सर। इसमें सेम टेम मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो मैकेनिज्म है थोड़ा समझ में आया, मतलब हाँ सर। हाँ, कुछ नहीं है, सिंपल चीजें है, तीन चार इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट है वो आपको देखना है, प्रिंसिपल देखना है, और एडवांटेजेस डिसएडवांटेज और उसका एप्लीकेशन, सब चीजों का इतना सारी चीज का थोड़ा ध्यान रखना है बस। ओके सर। और कुछ पूछना है? नहीं सर। ओके। अच्छा, ये और कितना स्लाइड्स है, एक सर मिनट। एग्जाम की डेट कौन सी है, कुछ आइडिया है आपका? कौन सा एग्जाम का डेट? कौन सा एग्जाम? एक्सटर्नल एग्जाम। एक्सटर्नल? हम्म। एक्सटर्नल एग्जाम सेम वन का तो अभी मुझे लगता है जनवरी में ही होगा, जनवरी का सेकेंड वीक के बाद ही होगा। ओके। हाँ। ओके ओके। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर, टेक केयर, थैंक यू सर, बाय।